Jai Hind everyone. Welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, we were discussing chapter 4, that is climate, and in that we have discussed about the Indian monsoon, how the Indian monsoon comes in our country. All these things we have discussed in the previous lectures in the school. We have discussed about the factors which affect the climate. Factors affecting climate we have already discussed in the class only, and then after we have discussed about the Indian monsoon. Now we are going to start the conditions which are responsible for monsoon and the several other topics from your chapter only. Okay, so let us start with the content and the explanation. So dear students, this is your chapter and we have discussed about the climate, weather. Then after we have discussed about the climate control, factors affecting Indian climate. Then after we have discussed about the Indian monsoon. We have seen these maps also, where we were discussing about the atmospheric condition over Indian subcontinent. We have discussed all these things. Now we will discuss the next topic of the chapter, that is intertropical convergence zone. We were discussing this only. Before that we have discussed till the condition affecting monsoon. Now we are going to discuss intertropical convergence zone. The intertropical convergence zone, ITCZ, is a broad trough of low pressure in equatorial latitude. What happened? The intertropical convergence zone, that means before or above the equator. Above the equator, that is Tropic of Cancer, and which is passing through the India only. So the Tropic of Cancer passing through the India in the middle of our country, it divides the Indian land in two categories, that is tropical and the subtropical. So what happened? The intertropical convergence zone, that means we are discussing about the area above the equator. We are discussing about the area above the equator where the Tropic of Cancer is passing. That means it is about India. So this is a zone. It is a zone on the earth surface, where the low pressure is present. That means before, above the equator line. That means equator is what? Equator is the longest latitude. So it is the longest latitude above the equator. Above the equator, the low pressure belt is formed. That is ITCZ. That is ITCZ. That means what it happens above the equator. इक्वेटर के ऊपर का जो भाग है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, उस एरिया को हम, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर होता है, मैंने बताया था आपको कि प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता है. इवन जैसे जैसे पोल्स पे आप जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलीज़ होना शुरू हो जाता है. मतलब कैसे हम कहते हैं, जब अल्टीट्यूड पे इंसान जाता है तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है, नसें फटने लगती है लोगों की. सो व्हाट हैपेंड, जो जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, पोल्स में जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता चला जाएगा. दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज. तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो हवा है और जो साउथ ईस्ट की हवा है, हमने डिस्कस किया हुआ था कॉरियोलिस फोर्स पे. रिमेंबर दैट नॉर्थ ईस्ट जो विंड है और साउथ ईस्ट जो विंड है वो दोनों आपस में आकर के मिलती हैं, आपस में आकर के कन्वर्ज होती. कन्वर्ज मतलब होता है इकट्ठा होना, आकर के रेज का मिलना, विंड का मिलना. तो दैट मीन्स वहाँ पे कन्वर्जेंस होता है. और अब आप सोचो कि जो साउथ ईस्ट की जो विंड है वो नीचे के इक्वेटर के नीचे की तरफ से चलते हुए आ रही है, साउथ ईस्ट से. मतलब हम कह सकते हैं कि आपका साउथ दैट मीन्स तमिलनाडु केरला वाला जोन, और ईस्टर्न दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आपका जो लक्षद्वीप का जोन है, लक्षद्वीप वाले एरिया से विंड आ रही हैं. और इधर क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर के तरफ से, जहाँ पे हिमालय, आपका हिमालय नहीं, आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है, दैट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट. तो ऊपर से आ रही है हवाएं, नीचे से आ रही हैं हवाएं, उस जैसे इस तरीके से और इस तरीके से आ रही हवाएं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, जो कि इंडियन लैंड पर हो रहा है, इंडियन सरफेस पे हो रहा है. दैट विल बी said as
ITCZ zone. Okay, so this is ITCZ. Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. Yes, what happened? It has been noticed that the changes in the pressure condition, जो pressure है, atmospheric pressure है, उसके conditions में अगर changes देखे जाते हैं सदर्न ओशन, नीचे जो आपका साउथ में ओशन है, इंडियन ओशन है, आपके साउथ में, ऐसे हर कंट्रीज़ के साउथ में ओशन है, तो हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन का है, साउथ में है, यहाँ का जो प्रेशर है, इनके प्रेशर में अगर कोई चेंज ऑब्जर्व किया जाता है तो ये क्या करेगा, ये भी अफेक्ट करता है हमारे मानसून को. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, the tropical eastern ocean experience low pressure. Yes, what happened, जो ईस्ट साउथ ईस्टर्न जो एरिया है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ जो एरिया है, वहाँ पर पैसिफिक ओशन है. अगर पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर ऑब्जर्व किया जाएगा तो इंडियन ओशन में लो प्रेशर देखा जाता है. बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन. लेकिन कुछ सालों में, सेवरल ईयर्स में क्या होता है, रिवर्सल होता है, चेंजेस हो जाते हैं, जहाँ पर पैसिफिक ओशन में लोअर प्रेशर हो जाएगा. पहले क्या होता है, पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर है, इंडियन ओशन में लो प्रेशर है. लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा भी होता है कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर कंडीशन हो जाता है. दिस पीरियोडिक चेंज, ये जो बार बार चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, प्रेशर में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो ये प्रेशर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं southern oscillation. It is known as southern oscillation or SO. The difference in the pressure over Tahiti, Pacific Ocean 18 degree south and 149 degree west, and Darwin in northern Australia, Indian Ocean, is computed to predict the intensity of the monsoon. जो आप हम कह सकते हैं पैसिफिक ओशन के एरिया में तहीती एक जगह है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्विन एक जगह है, जो कि इंडियन ओशन में से बिलोंग करता हुआ है. ये जो दो जोन हैं, ये क्या करते हैं, मॉनसून की इंटेंसिटी को नापने के लिए इन दोनों जोन को ही यूज़ किया जाता है. कैसे, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी आप नापते हो रिक्टर स्केल से, जिस जगह पर हुआ है वहाँ पर रिक्टर स्केल पे मेज़र किया जाता है. उसी तरीके से जो मॉनसून है उसकी इंटेंसिटी को इन दोनों जोन से ही कैलकुलेट किया जाता है. इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर निगेटिव, अगर प्रेशर का डिफरेंस निगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि एवरेज या मानसून लेट होगा. मानसून लेट होने का कंडीशन है अगर प्रेशर जो है वो निगेटिव जाता है. अगर इंटेंसिटी निगेटिव जाती है, प्रेशर निगेटिव हो रहा है या डिफरेंस निगेटिव हो रहा है, उस कंडीशन में मानसून लेट होगा. A feature connected with SO is the El Nino phenomena, in which warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. The change in pressure condition are connected to the El Nino. Hence, the phenomena is referred to as ENSO, El Nino Southern Oscillation. El Nino ये क्या होता है? पहली बात तो हम ये समझेंगे कि El Nino क्या होता है. ये है एक नाम दिया गया है, जो जोग्राफिशियन है उन सब के द्वारा एक नाम दिया गया है, जो पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट. जो ओशन है, मैंने बार बार आपको बताया है कि सन रेस की वजह से ओशियनिक जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होता है. तो होता क्या है, जो पीरियोडिक चेंजेस, जैसे मान लिया कि जो सरफेस सूरज के नज़दीक होगा उसी पर सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, अपोजिट साइड में कम होगा क्योंकि रोटेशन हो रहा है. हम वी एज्यूम दैट, बट ये कंडीशन होती है कि किसी जोन में जो ज़्यादा उभार वाला जोन होगा धरती का, वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी ओशन करंट, जो वार्म ओशन करंट है वो ज़्यादा जनरेट होगी इन कंपैरिजन टू अदर जोन्स. तो या इक्वेटोरियल जो जोन है वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोल्स. तो होता क्या है, ये वार्म करंट वहाँ पर डेवलप होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एल नीनो. एल नीनो मतलब होता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड. एल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड, कह सकते हैं हम बेबी चाइल्ड. तो ये क्यों एल नीनो को इस वजह से किया गया, नाम दिया गया क्योंकि
चाइल्ड ये स्पेनिश वर्ड है जो 25 दिसंबर जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, कहते हैं हम, क्रिसमस डे मनाते हैं, उसी समय ये हवाएं जो हैं, ये वार्म ओशन करंट जो हैं, ये फ्लो होना शुरू होती है, ये स्टार्ट होती हैं। तो इसी वजह से एल नीनो नाम दिया जाता है। जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है, उसी प्रकार इन हवाओं का भी जन्म उसी वक्त होता है, उसी आसपास होता है। इसी वजह से हम इसको एल नीनो कहते हैं। तो एल नीनो क्या है? दैट इज़ अ वार्म करंट, वार्म ओशियन करंट। तो होता क्या है कि जो एल नीनो है ये एक फेनोमिना है जो कि वार्म ओशियन करंट की है। ये क्या होता है? ये फ्लो करती है और हर 2 से 5 सालों में ये फ्लो करती है, या हर साल हम कह सकते हैं, हर साल ये नहीं फ्लो करती है, हर 2 से 5 सालों में ये ओशन करंट बनता है, कह सकते हो आप। धरती में, धरती के सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे ये बनते हैं और उसी टाइम आपका ये हवाएं एल नीनो जो है वो कंडीशन बनती है। ठीक, तो एल नीनो के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। Monsoon, unlike the trade, are not a steady wind but are pulsating in nature, affected by the different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical sea. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. Yes, मानसून ये क्या है? ये हवाओं की जैसे है, मतलब जिस तरीके से हवाएं होती हैं कुछ उसी प्रकार है। या आप कह सकते हो कि जिस तरीके से व्यापारी आते हैं व्यापार करके चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो मानसून है ये उसी प्रकार से आते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं, मतलब मूव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जैसे व्यापारी लोग करते हैं। ये क्या होता है? ये जो मानसून है ये अफेक्ट होता है डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। जैसे किसी भी जोन में कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा तो वो क्या करता है? मानसून को अफेक्ट करता है। ठीक, तो मानसून को अफेक्ट करने वाली जो विंड्स हैं उन्हीं को हम बोलेंगे कि ये एज अ ट्रेडर्स के जैसे होती हैं, जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अफेक्ट होती हैं। होता क्या है? जो मानसून है उसका ड्यूरेशन 100 से 120 दिन का है, 100 से 120 दिन का ड्यूरेशन है। अगर हम बात करें तो इंडिया में अर्ली जून टू मिड सितंबर, जून के शुरुआत से लेकर के सितंबर महीने के मध्य तक ये मानसून होता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। होता क्या है कि जब ये मानसून आता है नॉर्मल रेनफॉल होती है, फिर धीरे धीरे बरसात बढ़ जाती है, तेजी से होती है और फिर ऐसा होता है कि कई दिनों तक लगातार 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है। पहले एक बार हुआ, फिर 2-3 दिन 10 दिन बाद फिर एक बार हुआ, फिर 8 दिन बाद एक बार हुआ। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि जब 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती है तो ये होता है बर्स्ट ऑफ मानसून। मतलब मानसून किस तरीके से फूट रहा है, कह सकते हो आप कि जो फ्लावर है या कुछ भी आप कह सकते हो, बैलून है एक ही बार में बर्स्ट कर जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे धीरे धीरे करके पूरे एरिया में एक्सपैंड करना, पूरे एरिया में फ्लो करना। तो मानसून क्या करता है? धीरे धीरे बर्स्ट करता है, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा, फिर ज़्यादा, उस तरीके से। तो हम क्या करते हैं? हम स्टार्टिंग में अगर जून के स्टार्टिंग में अगर एक बरसात हुई तो हम ये कहते हैं मानसून आ गया है। हम पहले से ये हमारे ज़ुबान पे होता है कि मानसून आ गया है, अब बरसात आ गई है। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सबसे पहले जो मानसून है वो इंडिया के जो साउथ का जो सबसे ज़्यादा टिप वाला जो पोर्शन है, केरला वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में मानसून एंटर कर जाता है। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू 2 द अरेबियन सी ब्रांचेस एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कह रहा है कि जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, आपको पता है कि उसके एक किनारे अरेबियन सी है और दूसरे किनारे बे ऑफ बंगाल है। तो ये क्या कर रहा है? ये आपके टिप से जो केरला का एंड है वहाँ से शुरू अगर हो रहा है तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में भी फ्लोरिश करता हुआ आगे बढ़ता है। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट द 10 days लेटर और अप्रॉक्सीमेटली 10 of June। होता क्या है?
ये जो मानसून है ये अरेबियन सी वाले ब्रांच में भी आता है, अरेबियन सी के ब्रांच में भी आता है, लेकिन लगभग 10 दिन लेट। केरला में सबसे पहले, और 1 जून को हम कह सकते हैं, अगर हम एक टाइम लेकर के चले, एक डेट लेकर के चले, तो 1 जून में आ जाता है आपके केरला में, और मुंबई में ये 10 जून तक मानसून आ जाता है। दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। आसाम आप देख रहे हो, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही, वेस्ट बंगाल के ऊपर बांग्लादेश के साइड में आपका आसाम है, वहाँ पर भी 10 जून के आसपास मानसून आ जाता है। The lofty mountain causes the monsoon wind to deflect toward the west। लेकिन जो वहाँ पर माउंटेन है, जो हिमालय है, वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट कर देता है मानसून विंड की जो रास्ता है, जो उनकी दिशा है, उनको इधर से उधर कर देता है, मतलब वेस्ट के साइड मोड़ देता है। वेस्ट के साइड मतलब किधर आ जा रहा है, वो यूपी और वेस्ट बंगाल, बिहार के साइड एंटर कर जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वेस्ट के साइड जहाँ पर गंगा का मैदान है, गंगा प्लेन्स हैं, उस साइड वो डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। होता क्या है, जैसे जैसे जून का मध्य 15 से 20 जून का समय आता है, उस समय जो मानसून है वो सौराष्ट्र, कच्छ, इन सब जोन में आ जाता है। सौराष्ट्र मतलब एमपी वाला जोन जो है, और कच्छ यानी गुजरात वाला जोन जो है, यहाँ सब भी वो आ जाता है। इवन सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, उसमें भी आ जाता है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है, दोनों का जो मानसून है, दोनों तरफ जो ब्रांच, मानसून के जो दोनों ब्रांच निकले, वो दोनों मर्ज कर जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पर गंगा का मैदान है। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। दिल्ली में जो बारिश होती है वो आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच, आसाम से होते हुए, बिहार से होते हुए, यूपी से होते हुए, फिर दिल्ली में बारिश आ रही है, कुछ इस प्रकार से ये मूव करते हुए आती है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिश आ जाती है, जहाँ पंजाब हरियाणा से सटे हुए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, राजस्थान जो एरिया है, यहाँ पर जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है। अगर हम बात करें तो मिड ऑफ जुलाई, जुलाई के मध्य में जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है। कुछ इस तरीके से मानसून विंड्स चलती हैं। नाउ विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। विड्रॉल मतलब वापस जाना कह सकते हो आप, निकल जाना, आगे बढ़ जाना। तो विड्रॉल ऑफ मानसून इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये बहुत धीरे धीरे होता है, आराम आराम से होता है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। होता क्या है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मतलब गुजरात, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो रीजन हैं, यहाँ से विड्रॉल होना होता है, शुरू हो जाता है आपके मानसून का सितंबर के शुरुआत में। सितंबर के शुरुआत में बरसात जाने लगती है और अक्टूबर के मध्य तक, 15 अक्टूबर तक लगभग पूरी तरीके से जो नॉर्दर्न हाफ है वहाँ से पूरी मानसून जो विंड है वो आगे चली जाती हैं, वो विड्रॉल हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिड बाय अर्ली दिसंबर। लेकिन जो विड्रॉल है मानसून का सदर्न पार्ट में, केरला वाले रीजन में, वो दिसंबर तक होता है, दिसंबर तक जाता है वापस। द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिसंबर तक लगभग पूरे भारत से मानसून की जो विंड हैं वो हट जाती हैं, वो विड्रॉ हो जाती हैं, वो निकल जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मानसून पूरे हमारे कंट्री में किसी न किसी जोन में जून से लेकर के दिसंबर तक किसी न किसी जोन में पाया जाता है, और दिसंबर के मिड तक मानसून रेज जो है, मानसून विंड जो है वो चली जाती हैं। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर। जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले मानसून का की जो बारिश है, मानसून की जो फुहार है, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे पहले पड़ती है। Progressively from south to north, from the last week of April to the first week of May, the withdrawal take place progressively from north to south, from the first week of December to the first week of January.
कह रहा है कि जो आइलैंड है ये इनमें सबसे पहले मानसून आता है सबसे पहले, और साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ जो मानसून है वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही या फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही जो आपका मानसून है वो आपके आइलैंड्स में अराइव कर जाता है। तो विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और विड्रॉल मानसून आता है साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन जो विड्रॉल है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ होता है। ठीक, तो ये जो है बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और यहीं से जो कंट्री है, पूरे भारत का जो भाग है वो एक्सपीरियंस करता है विंटर मानसून। नाउ द सीजन्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू एवरीवन।